Hello guys, let's start with illustration number 12 today. I told you the topic when we purchase asset from the vendor means you purchase some asset from some person and in spite of money you are paying him the amount of shares. So this is issue of shares consideration other than cash. Look at illustration number 12. X Limited purchased a running business from Y Limited for a sum of rupee 30 lakhs payable 40% by check and the balance by issue of shares of rupee 100 each at a premium of 20%. एक्स लिमिटेड ने वायु लिमिटेड का बिजनेस 30 लाख रुपीज़ में खरीदा है. 30 लाख के रिटर्न में उसने 40% की तो उसको चेक से पेमेंट की और जो बाकी 60% बैलेंस बच गया उसके लिए उसने शेयर्स इशू किए 100 का ईच 20% के प्रीमियम पर. These are the following assets which he purchased from the person. So we have to pass out the journal entry. So first entry is when you purchase the assets, all the assets are to be recorded in the debit side. Firstly, we purchase building account debit, plant and machinery account debit, stock account debit, debtors account debit, cash account debit. Two creditors. Creditor is my liability. All the assets are in the debit and liabilities in the credit. Two vendor. The name of the vendor is mentioned here. It is Y Limited. तो हम उसका नाम लिखेंगे. Now write down the amount of the assets. 12 lakh is building. This is 8 lakh, 5 lakh, 4.30, 90,000, and this is 2 lakh. And here he purchased a business of rupee 30 lakhs. तो आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऑलवेज इक्वल आता है. इट इज़ 32 लाख और डेबिट में अगर हम टोटल करेंगे दिस अमाउंट इज़ लेस. अगर आपका डेबिट का टोटल लेस होता है सो द बैलेंसिंग फिगर इज़ टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल. And if the credit side is less, then the balancing figure is known as the capital reserve. So here the debit side is less by rupee 180. In the next entry, to the vendor you are paying 40% check. So vendor debit to bank. 30 lakhs में से हमने उसको 40% मीन्स 12 लाख की पेमेंट चेक से कर दी. अब 30 में से 12 पे कर दिया तो रेस्ट अमाउंट इज 18 lakh. For that you issued share at premium. So vendor debit to share capital to securities premium. The amount of vendor is left only 18 lakh. Now, how much is the number of shares? You have to find out. As I told you in the previous video also, the face value of share is here 100 rupees. 20% का प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू का निकलता है 20. 18 लाख का 20% प्रीमियम में लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा. तो फेस वैल्यू का प्रीमियम निकाला आपने 20 रुपीज़ तो शेयर कितने का हो गया 100 + 20 120 रुपीज़ का. आपको वेंडर को पे करने हैं 18 लाख. पर शेयर है 120 रुपीज़ का. इट मीन्स हमने उसको इशू किए हेयर 15,000 शेयर्स. अब एक शेयर है 100 रुपीज़ का और उसके ऊपर है 20 रुपीज़ का प्रीमियम. तो प्रीमियम इज़ ऑफ रुपी 3 लाख एंड द शेयर इज़ ऑफ रुपी 15 लाख. वंस अगेन 100 के शेयर पर 20% का प्रीमियम निकाला. 20 शेयर इज़ ऑफ 120 नाउ. सो 18 लाख रुपीज़ उसको पे करने हैं. 120 का पर शेयर है. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वी इशूड 15,000. 100 ईच. 20 इज द प्रीमियम. सो राइट डाउन द प्रीमियम and 100 each in the share capital. To get 30th also, King Limited took over assets of rupee 25 lakh and liability of 6 lakh of King Limited for the purchase consideration by issuing 10,000 shares of rupee 100 each at a premium of 10% and 11 lakh by bank draft. You need to find out the firstly purchase consideration. यहाँ पर थोड़ा सा उसको मोल्ड करके दिया है. आपको उसने क्या क्या उसको इशू किया वो मेंशन किया है. He said to the person we issued shares, equity shares be issued. They said 10,000 equity shares issued, 100 each 10% premium. तो 100 पर 10% का प्रीमियम हो जाएगा आपका 10 रुपीज़. शेयर कितने का हो जाएगा आपका 100 + 10 110 का. सो वी इशूड इक्विटी शेयर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 110 ईच. तो हमने उसको दिए शेयर्स कितने के 11 लाख रुपीज़ के. नेक्स्ट इज़ 11 लाख रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट दिया. बैंक ड्राफ्ट इशूड ऑफ रुपी 11 लाख मीन्स उसको टोटल हमने ख़रीदा उसके बिजनेस को 22 लैक्स में. नाउ ही परचेज एसेट्स. द एंट्री इज़ एसेट्स
account debit. Assets are of 25 lakhs. 2 liabilities. Liabilities are of rupees 6 lakh. और किससे परचेज किया है? क्वीन लिमिटेड से. सो द नेम ऑफ द वेंडर इज क्वीन लिमिटेड. वेंडर को हमने टोटल पे किया 22 lakhs. So the credit is 28 and the debit is 25. The balancing figure is in the debit side as rupee 3 lakh is the goodwill. नेक्स्ट एंट्री में अब आप सिंपली इशू कर सकते हैं शेयर्स. आपके पास डिटेल है सारी. वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू बैंक ड्राफ्ट. हमने टोटल वेंडर को पे करना है 22 लैक्स. 22 लैक्स में से 11 लाख का तो डीडी है, आपका ड्राफ्ट है. 10,000 शेयर्स है 100 रुपीज़ का ईच, तो 10 लाख शेयर कैपिटल हो गई. 10,000 शेयर 10 रुपीज़ का प्रीमियम, 1 लाख इज द शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो दिस इज अबाउट दिस illustration. You just try to sort out illustration number 14. The next topic is calls in arrears. Calls in arrears क्या होता है कि when a shareholder is not able to pay the amount of call, आपने फर्स्ट और सेकेंड कॉल पीछे की या अलॉटमेंट की, तो उनमें से अगर कोई भी शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट कर देता है उसकी पेमेंट को, सो दैट इज़ कॉल्ड द कॉल्स इन अरियर्स. सो वी हैव टू माइनस द अमाउंट जितना उसने पे नहीं किया. वन मोर थिंग, कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन को पे करने में डिफ़ॉल्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे किए बिना उसको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे. सो डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली एप्लीकेशन के बाद ही होगा. लुक एट दिस क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. 15th illustration. And one more thing, interest on calls in arrears is not a part of your syllabus. Chandra Limited issued 15,000 shares of rupee 100 each at a premium of 5%. Payment were to be made 25 application, 45 allotment, 35 first call. Application for 14,000 shares received. अब ये आपको ध्यान होगा ये टॉपिक कौन सा है. 15,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन से 14,000 शेयर्स की आई है. सो दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अब आपके क्वेश्चंस में पीछे वाले दो तीन टॉपिक्स ऐड एक ही क्वेश्चन में ऐड होकर आया करेंगे. ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर. सारा पैसा मिल गया, सिर्फ 200 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई. सो लेट्स स्टार्ट. हियर कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का ईच है, 5% का प्रीमियम है, मीन्स 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो शेयर हो गया आपका 105 का. 25 एप्लीकेशन है, 45 अलॉटमेंट मनी है, 35 की फर्स्ट कॉल है. चेक इट आउट, इट इज़ 105. इट इज़ नॉट मेंशन कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो यू जस्ट assume including premium of ₹5 at the time of allotment. Now the application received for 14,000 shares. So this is under subscription. सारी entry हमारी 14,000 shares से ही होंगी. So the first entry is bank account debit. Here it is mentioned that you have to prepare the cash book. तो आपको मैंने बताया था जब कैश बुक बनानी होती है तो हम बैंक की एंट्रीज नहीं करते, तो मैं विदाउट कैश बुक बना रही हूँ so that आपको क्लियर हो जाए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 14,000 शेयर है, 25 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया 3,50,000. सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,50,000, 350. नेक्स्ट एंट्री हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे. अलॉटमेंट इंक्लूड्स प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. 14,000 शेयर्स हैं, 45 रुपीज़ के अलॉटमेंट है, सो 14 इंटू 45 इट इज़ 6,30,000. अब प्रीमियम इज़ ऑफ ₹5, सो 14,000 के ऊपर 5 रुपीज़ का प्रीमियम 70,000. द रेस्ट इज शेयर कैपिटल एज ₹560. नेक्स्ट रिसीव द फर्स्ट कॉल, रिसीव द अलॉटमेंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट होगी, मीन्स 630. Next, due the first call. Share first call debit to share capital. They said first and final are combined. 14,000 शेयर है, 35 रुपीज़ की आपकी फर्स्ट कॉल है, 490. Next, you have to receive the first call. Entry is bank account debit to share first call. अब यहाँ पर एक चीज़ है डिफरेंट, कॉल्स इन अरियर्स है. यहाँ पर उसने कहा है वन शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, एक शेयर होल्डर था कोई भी, उसके पास 200 शेयर्स थे, उसने 35 रुपीज़ की फ़र्स्ट कॉल 200 शेयर्स पर पे नहीं की. इट मीन्स उसने 7,000 रुपीज़ का
कॉल्सिन अरियर किया जो उसने पे नहीं किया, तो मुझे टोटल 4,90,000 रुपीज़ रिसीव होने थे शेयर्स पर जब मैंने अपनी बुक्स में उसको ड्यू किया था, बट उसमें से 7,000 मुझे नहीं मिला। सो इन द बैंक वी विल शो 483 ओनली। कॉल्स इन अरियर्स को हम डायरेक्ट लेस करके दिखा रहे हैं। आप इसको चाहें तो जर्नल एंट्री में डेबिट भी कर सकते हैं, बट हम इसको आगे क्वेश्चंस में लेस ही करेंगे डायरेक्ट। अगर इसको डेबिट कर रहे हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट बाय 483, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट बाय 7,000 टू फर्स्ट कॉल बाय 490। जो अरियर होगा वो बैंक वाली एंट्री में लेस करके रिकॉर्ड किया जाएगा। सो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू कॉल्स इन अरियर्स। सो लुक एट द बैलेंस शीट ऑल्सो। बैलेंस शीट में आपने शेयर्स इशू किए थे 15,000, 100 रुपीज़ का ईच था। 15,000 शेयर्स पर आपने 100 रुपीज़ का ईच था। अब इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, मैं आपको दूसरे सेंस में बताती हूँ कैसे करेंगे। 15,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का ईच था, तो आपको रिसीव्ड होने थे 15 लाख। कॉल्स इन अरियर्स सीधा लेस कीजिए। कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ आपको? 7,000 रुपीज़। So you will received only 14,83,000 rupees. Sorry guys, it is 14,000 share because the application received for 14,000. तो हमारी 14,000 से एंट्री होगी। सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर 14,000 at the rate of ₹100 each, 14 lakh. The calls in arrear is of ₹7,000, so the rest amount is 13,93,000. जो बुक में इन्होंने मोल्ड करके दिया हुआ है, ये दूसरे सेंस में दिया है कि 14,000 की सब्सक्रिप्शन में से 200 शेयर्स पर जो आपका अरियर हुआ है उसको लेस करके हमारे पास फुल अमाउंट आया 13,800 शेयर पर 100 रुपीज़। और जो उन्होंने 13,000 का अरियर है वो अलग से दिखाया। सो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 14,000 में से जो कॉल्स इन अरियर्स हुआ उसको लेस करके वी रिसीव्ड ओनली 13,93,000। The next topic is calls in advance. Calls in advance is कि when you received some money in advance, कि फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर को पैसा कॉल्स के टाइम देना था बट उसने उसको पहले ही पे कर दिया, मे बी एप्लीकेशन के टाइम, मे बी अलॉटमेंट के टाइम, सो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन advance. So look at how we will solve the question. Again, the interest on calls in advance is not the part of your syllabus. So look at this illustration number 16. Chandra Limited issued 40,000 shares of ₹10 each payable as on 2.5 application, 2.5 allotment, 2 on 3 first or second call. The dates are also mentioned here. So next we will discuss all these shares were subscribed and amount received. Mohan, who had 800 shares, paid the amount of first and second call with allotment. एक पर्सन है मोहन जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसको जो 800 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा पे करना था वो उसने अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। 40,000 शेयर्स हैं, 2.5, 2.5, 2 and 3, like this you have to receive the amount.